تو یہاں ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ یہاں سے ہم کیا عکس کرتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ بس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتوں کو چھوڑ، کیا کہا جا رہا ہے؟ چھوڑ دیں، مسیح کی تعلیم کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ اصل میں ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بپتسمہ لے لیا اوکے ہو گیا کام، تعلیم لے لیے کام اوکے ہو گیا ہے، آپ کو ہاتھ رکھ کے بلیس کر دیا ہے کام اوکے ہو گیا ہے، آپ نے توبہ کر لی ہے کام اوکے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے؟ یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ نے توبہ کر لی ہے تو توبہ ایک ہی دفعہ ہے، بپتسمہ لے لیا ہے بپتسمہ ایک ہی دفعہ ہے، بلیس ہو گئے ہو تو بلیسنگ ایک ہی دفعہ ہے، دوبارہ اس کی بنیاد نہیں رکھنی، اگر رکھتے ہیں تو ہم مسیح کو دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اگے بھی توبہ کی تھی پھر پڑھ رہی ہے، اگے بھی نے بپتسمہ لیا تھی پھر نہیں ہے۔ تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے ایک دفعہ بپتسمہ لے لیا، ایک دفعہ آپ نے توبہ کی خدا پر ایمان لا کر، تو آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، ابدی عدالت کی تعلیم پا چکے ہیں، تو پالوس کہتا ہے کہ خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کی عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائے، غور سے سننے والی بات ہے، جن لوگوں نے کلام بھی سنا، روح القدس میں بھی شریک ہو گئے بپتسمہ لے کر، اگر وہ برگشتہ ہو جائے یعنی کہ واپس چلے جائے، دوبارہ سے ان کاموں کو شروع کر دیں جو انہوں نے پہلے توبہ کر کے ختم کیے تھے۔ مثال کے طور پر میں بپتسمہ لینے سے پہلے یعنی کہ توبہ کرنے سے پہلے کیا کرتا تھا؟ زنا کاری کرتا تھا،
चोरी करता था, डकैती डालता था, ये सारे काम में करता था। आप सब समझ सकते हैं कि यहाँ क्या बात हो रही है। तौबा करने से पहले अगर आप ज़िनाकारी करते हैं, बदकारी करते हैं, चोरी करते हैं, नशा करते हैं, जो भी काम करते हैं वो आप तौबा करने से पहले करते थे का मतलब कि वो चीजें हम कहते हैं, जैसे कहते हैं कि क्रिसमस गुजर गया, फलां बंदा गुजर गया, ठीक है। गुजर जाने का मतलब होता है मर जाना, खत्म हो जाना। तो वो चीजें आपके साथ जुड़ी हुई थी कब? जब तक आपने तौबा नहीं की। जब आपने तौबा कर ली तो अब इन चीजों की आपको जरूरत नहीं है कि फिर से आप ज़िना करें, फिर से बदकारी करें, फिर से चोरी करें, फिर से आप उन कामों में शरीक हो जाए। अगर यह लिखा है कि अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। खत्म, कहानी खत्म। हम बाइबल मुकद्दस में से इस बात को देखते हैं कि यहूदा अस्करियोती ने तौबा की, उसके वसीले से काम भी होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के साथ रहता था, बपतिस्मा लिया, रसूलों में शरीक हो गया, सारा कुछ। तो उसने क्या किया? उसने चोरी करना नहीं छोड़ी, चोरी करना उसने नहीं छोड़ी, लालच उसने नहीं छोड़ा, यहां तक कि यीशु मसीह को भी उसने बेच दिया। इतना लालच था उसके अंदर, थैले में से चोरी पैसे निकाल लेता था हदिये के। जो हदिया था, समझे कि वो खजांची था। चर्च में जैसे खजांची होता है जिसके पास सारा रिकॉर्ड होता है, पैसा वैसा, तो वो खजांची था। हदिये का बोरा उसके पास होता था, थैला, उसमें से चोरी पैसे निकाल लेता था। चोर था यहूदा अस्करियोती। और एक वक्त आया कि इब्लीस ने उसे कहा कि तू ऐसा कर, इसको पकड़वा दे, तुझे बड़ी दौलत मिलेगी। तो उसने क्या किया? जिंदगी का जो मालिक है उसको भी न छोड़ा। उसने जाकर उनके साथ कॉन्फ्रेंस की कि भाई मैं आपको पकड़वाऊंगा, क्या देंगे? कहा ठीक है, पहले पकड़वा फिर हम देंगे। उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दे दिए। इस पर एक बड़ा अच्छा गीत भी है। लगी थी दिनार ते सौदा कर बैठा, लगी थी दिनार ते सौदा कर बैठा, यार नो बेचे यार ते सौदा कर बैठा, लेके 3 दिनार ते सौदा कर बैठा। तो 30 दिनार में यार ने यार को बेच दिया, यीशु मसीह को, पैसों की खातिर।
तो हमें इस बात को अपने ज़हनों में रखना है। तो जब उसने यीशु मसीह को बेच दिया तो उसके बाद यीशु मसीह ने क्या उसके हक में कहा? ये नहीं हो सकता कि ठोकर ना लगे, ये नहीं हो सकता कि ठोकर ना लगे, मगर जिसके सबब से लगे उसके साथ क्या किया जाए? चक्की का पाट उसके गले में डालकर उसको समुद्र की तह में डाल दिया जाए। अब वो इतना मजबूर हो गया, इतना, जब खुदा उससे अलग हो गया तो इब्लीस ने उसका वो हाल किया इतना ज्यादा। आपको पता है कि जब इब्लीस काम ले लेता है तो उसके बाद वो खत्म कर देता है। तो उसके साथ भी ऐसा हुआ, इब्लीस ने उसे काम लिया। अब इतना इब्लीस उसे परेशान करता था, इतना उसे मलामत होता, तो यीशु ने मरवा देता है, तो यीशु ने मान। और उसने क्या किया? गले में फंदा डाल के अपने आप को खत्म कर दिया। यीशु को छोड़कर हम कभी भी चैन और आराम से रह नहीं सकते। हम कभी भी चैन से आराम से रह नहीं सकते यीशु मसीह को छोड़कर। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को अपने ज़हनों में रखना है कि यहाँ हम यही बात बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं कि अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया ज़लील करते हैं। यहूदा अस्करियोती को अगर हम कहते चल ठीक है दोबारा तौबा कर ले, तेरे दोबारा बपतिस्मा दे देंगे, दोबारा तेरे हाथ रख के तेरे ऊपर रसूल मुकर्रर कर देंगे, तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि बस खत्म, अब दोबारा ना तो ब्लेसिंग है, ना बपतिस्मा है, ना तौबा है। यहाँ पर स्टॉप लग गया। जो शख्स वापस चला जाता है उसका दोबारा मसीह के पास आना मुश्किल है। तो हमें यहाँ इस बात को देखना है कि एक बेटी ने बपतिस्मा लिया, नौजवान बेटी थी, वो पंजाब चली गई और पंजाब जाकर जिस चर्च में गई तो उन्होंने कहा कि बपतिस्मे होंगे। गौर से सुनो, उन्होंने कहा कि बपतिस्मे होंगे। उन्होंने कहा मैंने भी लेना है, हालांकि उसने पहले लिया मैंने कहा मैंने भी लेना है। आपने पहले लिया नहीं? हाँ मैंने लिया था, मगर ये हुआ कि वहां जितने लोगों को बपतिस्मा देना था उसमें से एक नहीं आया था, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती बपतिस्मा दे दिया। जबरदस्ती हम किसी को बपतिस्मा दे सकते हैं? जितने लोगों के नाम थे उसमें से एक आया नहीं, तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे पकड़ के कहा आजा हम तुझे बपतिस्मा देते हैं। तो मेरे अजीजों, बपतिस्मा सिर्फ एक दफा है। बार बार करते हैं तो हम बार बार यीशु को जलील करते हैं, एलानिया जलील करते हैं, यीशु में फिर बपतिस्मा है, यीशु में तौबा करना। बार बार एलानिया जलील मत करें यीशु को, एक बार तौबा करें, एक ही बार। एक बारी कन्ना नू हथ ला ले,
एको बारी कन्नू हाथ लाले तो बाने चंगी बार बार दी तो बाने चंगी बार बार दी। तो एक बार जो है कानों को हाथ लगाना है और एक बार तौबा करनी है, उसके बाद आपने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे मुड़कर देखने का अंजाम मैं आपको बताता हूँ कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे की जो चीजें हैं वो हमें ट्रैक करती हैं। क्या करती है? ट्रैक करती है। ओहो, मेरे पांडे, मेरा कार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे अजीज और अहराम, मेरी खास चीजें। ऐसा किसके साथ हुआ? लूत की बीवी के साथ। लूत की बीवी को याद रखो, क्योंकि उसको खुदा ने क्या कहा कि पीछे मुड़ के देखना, भागते जाना है, स्पीड लगानी है और सामने भागते चले जाना है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। तो मेरे अजीजों, जब वो भाग रही थी तो इब्लीस ने उसके कान में आकर कहना शुरू कर दिया, वो पीछे तेरे पाटेगी, वो पीछे तेरा कार ही, और तेरे 7-8 सूट भी पहनेगी नवे होगी, और तेरा सुर्खी पाउडर भी पियाई। तो उसने कहा अच्छा। उसने पीछे देखा और आज तक वो वहीं की वहीं खड़ी है, आज तक वहीं की वहीं खड़ी है। दोबारा उसने वापस मुड़कर नहीं देखा। यहां भी हमें यही बताया जा रहा है कि जो बर्बस्ता हो गए उनको दोबारा नया बनाना नामुमकिन है। तो अगर आपने तौबा करने का फैसला कर लिया है तो तौबा का मतलब आप समझ लें कि क्या है। क्या मतलब है तौबा का? हाँ जी, तौबा का मतलब क्या है? तौबा का मतलब तो बहुत लोग जो है बड़ा इजीली लेते हैं, तौबा बड़ी गर्मी, तौबा तौबा, आज सालन में बड़ा खर्चा होता है, ऐसे गुनाह से तौबा करके गुनाह में वापस नहीं। हाँ जी। तो अगर हम ये तौबा हकीकी मायनों में इसको लेते हैं, तौबा तौबा, आज के बाद मैंने ये काम नहीं करना, क्योंकि लूत की बीवी मुझे याद आ गई है, यहूदा अस्कर युवती भी मुझे याद आ गया, ठीक है। इसके अलावा और बहुत से रेफरेंस बाइबल में मिलते हैं जिनके साथ ये हुआ। तो खुदा हमें यही आज बताना चाहते हैं कि हमने उसकी बुनियाद दोबारा से नहीं डालनी। एक दफा बपतिस्मा है, कितनी दफा है? एक दफा। उसकी बुनियाद दोबारा से नहीं डालनी। अगर हम बपतिस्मा लेकर वही काम, आज बपतिस्मा लिया है, 2 दिन बड़ा सी मजहबी बन गए। 2 दिन मजहबी होता है, वो रूहानी नहीं होता। एक मजहबी बंदा होता है और एक रूहानी होता है। रूहानी जो है वो नजर आता है, और जो मजहबी होता है वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं रूहानी हूँ। तो ऐसे लोगों से यीशु मसीह क्या कहता है? ऐ फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम दिखावे के लिए नमाज को तुम देते हो। बाजारों पे खड़े होकर तुम नमाज पढ़ना पसंद करते हो ताकि लोग तुम्हें रास्तबाज जाने। तो हमने आपको रास्तबाज दिखाना नहीं है, बल्कि रास्तबाज बनना है। हालेलुया। रास्तबाज दिखावे के लिए नहीं बनना, बल्कि रास्तबाज
बनना है। और इसके लिए हमने खुदा से कमिटमेंट करनी है, पूरा पूरा कमिटमेंट तौर पर खुदा को अपने आप को दे देना है। और जब उसको पूरा पूरा हम दे देंगे तो हम खुदा के कलाम में लिखा है 8वीं आयत, बल्कि 7वीं आयत है कि क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है और उनके लिए कारआमद सब्जी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर झाड़ियां और ऊन कटारे उगाती है तो नामकबूल और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना। सुने क्या लिखा, लिखा क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पीती है जो उस पर बार बार गिरती है, बार बार होती है, उनके लिए कारआमद सब्जियां पैदा करती है। तो जो कलाम आपके दिल के अंदर उतरता है, आपके दिलों की जमीन को नरम करता है, तो अगर नरम हो जाता है तो फिर क्या होता है, फल होते हैं, सब्जियां उगती हैं। तो अगर आपको बार बार कलाम सुनाया जा रहा है फिर भी ऊंट कुटारे और झाड़ियां ही उग रही है, तो फिर क्या लिखा है यहाँ, तो नामकबूल और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना हो। सदियों से कलाम सुनना, दिल नरम नहीं होता गया। वक्ती तौर पर बड़ा पसंद आता, कलाम बहुत अच्छा था, कलाम बहुत अच्छा था। वो मुझे अक्सर याद आ जाता है, एक नौजवान ने नवा मैट्रिक किया, नवी 10वीं करके अपने महल्ले च आ गया, लोगों गया ने 10वीं की थी, एक बाबा गया छत तपी जाके पेटी के ताले तोड़े, कट के बाइबल ले आई, वो बच्चे ने दी, उन्हें सारी रात पढ़ता रहा, सारी रात बाइबल पढ़ता रहा। सुबह उठे, बड़ा शोर पे, राती बड़ा कलाम सुनिया, बड़ा कलाम सुनिया। बाबा कहता राती बड़ा कलाम सुनिया। बंदे ने पूछा, बाबा जी राती कलाम सुनिया तो है जी, बड़ा सुनिया जी, सीखिया की? ये नहीं पता, बस कलाम बड़ा सुनिया। आप समझ रहे बात? बाबा जी कलाम से पूरी रात तुझे सुनिया, सीखिया की जे? सीखन का कोई पता नहीं, सुनिया बड़ा कलाम, पूरी रात कलाम सुनिया। तो हम भी ऐसे करते हैं, सालों से कलाम सुनते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ, कलाम बड़ा सुनिया, सीखिया की कोई नहीं, अमल क्या है, कुछ नहीं। तो हमें यहाँ इस बात को अपने ज़हन में रख लेना है कि अगर ऊंट कटारे उगते हैं तो क्या लिखा है कि नामकबूल और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना हो। तो आज हमें इस बात को अपने ज़हनों में रख लेना है कि जितने लोग कहते हैं कि मैं तौबा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो तौबा करने से पहले इस बात को जान ले कि तौबा कितनी दफ़ा है, बपतिस्मा कितनी दफ़ा है, ठीक है। और जब एक दफ़ा हमने इन तमाम बख्शिश का मज़ा चख लिया, ठीक है, रूहुल कुद्स में शामिल हो गए, आपको रूहुल कुद्स भी मिल गया, सारा कुछ हो गया, और फिर आपने वही काम करना शुरू कर दिए
تو اس کے بعد پھر آپ کو نیا بنانا ناممکن ہے۔ صحیح؟ نیا بنانا ناممکن ہے۔ کمہار جب اپنی چاک کے اوپر، چاک ہی کہتے ہیں نا، برتن بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بڑے احتیاط سے بناتا ہے اس کو، ذرا سا بھی ٹیڑھا آ جائے تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، وہ کام کا نہیں رہتا، پھر وہ اس کو توڑ دیتا ہے۔ کمہار کیا کرتا ہے؟ اس کو پھر توڑ دیتا ہے، اگر دکان ہے نواں برتن بناتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم میں سے جتنے لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، خدا نے آپ کو نیا بنایا، تو آپ کی شکل بگڑ جائے، کلام میں کیا لکھا ہے کہ اس جہاں کی ہم شکل نہ بنو بلکہ اپنی صورت بدل دے گا۔ تو اگر ہماری شکل نہیں بدل رہی، خراب ہو گئی ہے، بگڑ گئی ہے، تو پھر کمار کا کام کیا ہے؟ وہ اس کو توڑ موڑ کے پھینک دے گا اور پھر نواں بندہ لبے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ نیا بندے پہ محنت ہوگی، اس کا کام تمام ہو گیا ہے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ یہی بتایا جا رہا ہے یہاں کہ اور اگر جھاڑیاں رول پٹارے اگاتی ہے تو نامقبول ہے اور قریب ہے کہ لعنتی ہو، اور اس کا انجام کیا ہو؟ جلایا جانا۔ یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتے ہیں بار بار کہ ایسا نہ ہو کہ تم جلائے جاؤ، تم گرائے جاؤ۔ اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھ لو کہ توبہ جو ہے بار بار نہیں، ایک بار 10 بار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ زیرو کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک کے آگے جو زیرو لگاتے ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ اس کے اس طرف تو زیرو ضرور لگ سکتا ہے، اس طرف نہیں۔ تو آج ہمیں اس بات کو اپنے پلے باندھ لینا ہے، پلے باندھنا ہے، صحیح ہے؟ آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں جو عورتیں تھیں وہ اپنا جو دوپٹہ ہے اس کے کونے پر باندھ لیتی تھی۔ کیا باندھ لیتی تھی؟ پیسے پوسے، چابیاں، جیڑی تاکہ کوئی شے گمے نہ، پتہ یاد رہے گا وہ تمہیں دوپٹے نہ بھول بھی جائے تو دوپٹے دے نال بنی ہے نا، تاکہ یاد آ جائے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پلے باندھ لینا ہے کہ توبہ جو ہے ایک بار ہے، بپتسمہ ایک بار ہے، ٹھیک ہے، نجات بھی ایک ہی دفعہ ملے گی، بار بار نہیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ تو